బీజాపూర్ జిల్లా కేంద్రంలో ముఖేష్ చంద్రాకర్ హత్య సంచలనంగా మారింది. జర్నలిస్టు ముఖేష్ చంద్రాకర్ ఎన్డీటీవీలో పనిచేసే జర్నలిస్టు. అయితే సీనియర్ జర్నలిస్టుగా ఈ ప్రాంతంలో మంచి గుర్తింపు ఉంది. అయితే ఎవరైతే హత్య చేశారో హత్య చేసిన సురేష్ చంద్రాకర్కి సంబంధించిన క్యాంపు అంటే ఇల్లీగల్గా కబ్జా చేశారని ఇటు క్యాంపును డిమాలిష్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సురేష్ చంద్రాకర్ ముఖేష్ చంద్రాకర్ను హత్య చేయించారు, తనకు సంబంధించిన సంపులో దొరికిందని చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడవచ్చు. అయితే జర్నలిస్టుల సమక్షంలోనే నేరుగా సురేష్కు సంబంధించిన ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తున్న పరిస్థితి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్ తీసుకున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ముఖేష్ చంద్రాకర్కు సంబంధించిన అంశంలో ప్రభుత్వం సీరియస్ తీసుకున్న పరిస్థితి. ఇప్పటికే డీజీతో పాటు ఇటు జిల్లా ఎస్పీ కావచ్చు, అదేవిధంగా ముఖ్యమైన అధికారులు అందరూ వచ్చిన పరిస్థితి. అయితే 3 ఎకరాల ఫారెస్ట్ భూమిని కబ్జా చేశారని చెబుతున్న పరిస్థితి. దీనికి సంబంధించిన అంశంలో ఇటు మీడియా ఎప్పటికప్పుడు వాస్తవిక పరిస్థితులను చెప్పే ప్రయత్నం చేసింది. వాస్తవిక పరిస్థితులు చెబుతూ ముఖేష్ చంద్రాకర్కు హత్య ఏ విధంగా చేయబడ్డా అంటే 1వ తారీఖు రోజు ముఖేష్ చంద్రాకర్ను నేరుగా పిలిపించి హత్య చేశారని సురేష్ చంద్రాకర్తో పాటు ఇంకో 4 తన సోదరులు 3 సోదరులు హత్య చేశారని చెబుతున్న పరిస్థితి. అయితే ఎవరైతే సురేష్ చంద్రాకర్ ఉన్నాడో ఇతను హైదరాబాద్లోనే 2 బ్రదర్స్తో దొరికినట్టు ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసులు చెప్పిన పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో సురేష్ చంద్రాకర్ను అదుపులో తీసుకొని ఇటు ఛత్తీస్గఢ్కు తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. అతి సమీపంలో ఉన్న తన క్యాంపును డిమాలిష్ చేస్తున్న పరిస్థితి. ఇప్పటికే ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగిందనే కోణంలో సీరియస్గా ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక కమిటీని వేసిన పరిస్థితి, దర్యాప్తు చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. అయితే ఎందుకు జర్నలిస్టు ముఖేష్ చంద్రాకర్ను హత్య చేశారనే కోణంలో సీరియస్గా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తే ఒక కాంట్రాక్ట్ అంటే 53 కోట్లతో మొదలుపెట్టిన కాంట్రాక్ట్ వర్క్, రోడ్ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ అంశంలో ఎన్డీటీవీలో వరుస కథనాలు రావడం జరిగింది. వరుస కథనాలు తన కాంట్రాక్టుకు ముప్పు కలిగింది, బిల్లులు లేవకుండా జరిగిందని వెంటనే ముఖేష్ చంద్రాకర్ను హత్య చేశారని చెబుతున్న పరిస్థితి. 53 కోట్ల రూపాయలు కాస్త ఎక్స్టెండ్ పేరుతో 112 కోట్ల రూపాయలు చేశారు. 112 కోట్ల రూపాయలు డ్రా చేశారు కాబట్టి అవినీతికి పాల్పడ్డారు. పని జరగలేదు, పని జరిగినట్టు చూపెట్టే ప్రయత్నం జరిగింది. ఆ ప్రయత్నంలోనే ప్రధానంగా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. కొద్ది రోజుల నుంచి మాటేసి ఉన్న సురేష్ చంద్రాకర్ నేరుగా 1వ తారీఖు రోజునే చంపేసి సంపులో పడేసి మీదికెళ్ళి ప్లాస్టింగ్ చేసి ఒక స్లాబ్ వేసిన పరిస్థితి కనబడింది. ఎక్కడ అనుమానం రాకుండా ప్రయత్నం చేసిన పరిస్థితి. అయితే దీనిపై జర్నలిస్టులు చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. ఫేమస్ ఈ ప్రాంతంలో ప్రజా సమస్యలపై ఎప్పటికప్పుడు స్పందించే ముఖేష్ అంశంలో 1వ తారీఖు నుంచి దర్యాప్తు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న డిఐజీ సుందర్ రాజ్కు ఫిర్యాదు చేసి సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ ద్వారా ట్రేస్ చేసే ప్రయత్నం చేయగా ఎక్కడైతే చివరి లొకేషన్ ఉందో ఆ చివరి లొకేషన్ తన సురేష్ చంద్రాకర్ కాంట్రాక్టర్కి సంబంధించిన ఒక గోదాం దగ్గరనే దొరికింది. కాబట్టి వెంటనే అక్కడ జర్నలిస్టు వెళ్ళి పోలీసులు వెళ్ళి వెంటనే దాన్ని పరిశీలించే ప్రయత్నం చేయగా సంపులో నుంచి సురేష్ చంద్రాకర్కి సంబంధించిన డెడ్ బాడీ వెళ్ళగానే తన అన్న కన్నీరు మున్నీరైన పరిస్థితి కనబడింది. తెలంగాణ నుంచి, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి, ఒరిస్సా నుండి, అటు ఢిల్లీ నుండి కూడా కొంతమంది జర్నలిస్టులు వచ్చి నివాళులు అర్పించిన పరిస్థితి. ఇందాకనే సురేష్ చంద్రాకర్కి సంబంధించిన అంత్యక్రియలు పూర్తయిన తరుణంలోనే ఇటు ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం సీరియస్ తీసుకుంది. మరోసారి మనం చూపెట్టచ్చు. ఇప్పటికే చాలా సీరియస్గా తీసుకొని ఎక్కడెక్కడ ఇల్లీగల్గా కాంట్రాక్ట్ పనులు జరుగుతున్నాయి, ఇల్లీగల్ కబ్జాలు జరిగాయి అనే కోణంలో సీరియస్ తీసుకున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. దీంతోపాటు కొంతమంది మనకు జర్నలిస్టులు కూడా ఉన్నారు. ఒకసారి జర్నలిస్టులతో కూడా మాట్లాడిద్దాం. అసలు ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగిందనే కోణంలో జర్నలిస్టులతో కూడా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు ఎప్పుడు జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఏమంటుంది తెలుసుకున్నా. ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది, ఎందుకు సురేష్ చంద్రాకర్ను సురేష్ చంద్రాకర్ ఒక కాంట్రాక్టరు విలేకర్ని ఆయన సమాచారం చూసి విరుద్ధం రాసి ఉండే అనే సమాచారం రోడ్డు పని గురించి
ఆ సమాచారం విరుద్ధంగా చేసిండని ఆయనని చంపి సెప్టిక్ ట్యాంక్లా వేసిండు. ఇంకా ఆయన మీద ఈ అతిక్రమణలు ఎన్ని ఉన్నాయో మొత్తం గవర్నమెంట్ సీజ్ చేస్తాం. ఏంది అసలు అంటే ఎందుకు ఇన్ని రోజులు గవర్నమెంట్ స్పందించలేదు, ఇప్పుడే ఎందుకు స్పందించవలసి వచ్చింది? సురేష్ చంద్రకర్ కావచ్చు, అటు ముఖేష్ చంద్రకర్ కావచ్చు, ముఖేష్ చంద్రకర్ సురేష్ చంద్రకర్ మధ్య ఎందుకు గొడవ వచ్చింది? ఆయన రోడ్డు వరకు తీసుకొని ఉండే, రోడ్డు వరకు కాడ పని మించి బాగా జరగలేదైతే దాని గురించి ఈయన రాసి ఉండే పేపర్లో, టీవీ ఛానల్లో. ఎవరు? ముఖేష్ ఆయన దాని విరుద్ధము పిలిపించి ఇంటికి పిలిపించి ఇంటికాడ చంపించి సెప్టిక్ ట్యాంక్ లేపించి. ఏంది మరి జర్నలిస్ట్ సంఘాలు ఏం చెప్తున్నాయి? ఏంటి సంఘాలు, ముఖ్యమంత్రి, గృహమంత్రి అందరూ ఈయన విరుద్ధం చేసి కాంట్రాక్టర్ వర్క్ను మొత్తం రద్దు చేసి మొత్తం వాళ్ళని అరెస్టులు తీసుకున్నాడు. ఇది పరిస్థితి మనం చూపెట్టచ్చు. ఇటు మిషన్ని నేరుగా మిషన్ల ద్వారా ఎక్కడిదక్కడ డిస్ట్రైవ్ చేస్తున్న పరిస్థితి, ఎక్కడిదక్కడ రిమూవ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ప్రధానంగా అంటే అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడ్డ సురేష్ చంద్రకర్ కాంట్రాక్టర్ను వెంటనే ఇప్పటికే ఆ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పరిస్థితి, అసలు ఏం జరుగుతుందనే కోణంలో సీరియస్గా తీసుకుంటున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. పలు రాష్ట్రాల నుండి, పలు జిల్లాల నుండి ఇప్పటికే జర్నలిస్టులు చేరుకున్నారు. ముఖేష్ చంద్రకర్కు నివాళులు అర్పించిన పరిస్థితి కనబడింది. అయితే ముఖేష్ చంద్రకర్ ఎలా ఉండేది, జర్నలిస్టులతో ఏ విధంగా ఉండేవాడు, అసలు ఎందుకు ఇటు సురేష్ చంద్రకర్ కాంట్రాక్టర్ మధ్య, అటు ముఖేష్ చంద్రకర్ కాంట్రాక్టర్ మధ్య గొడవ జరిగింది? ఒకసారి మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉన్నాడు, ఛత్తీస్గఢ్కు సంబంధించిన జర్నలిస్ట్, ఒకసారి మాట్లాడారు. क्या सर, क्या हुआ, कई के लिए मुकेश को मर्डर करना पड़ा? देखिए, मुकेश चंद्राकर बीजापुर ज़िले के एक काफ़ी वरिष्ठ और खोजी पत्रकार थे। काफ़ी डेयर था इनमें, काफ़ी लंबे समय से इन्होंने पत्रकारिता में अपना नाम पूरे देश भर में बनाया था। नक्सल गतिविधियों से लेकर के भ्रष्टाचार के कई बड़े मुद्दों पे ये खुलासे वाली खबरें हमेशा प्रसारित करते थे। ये जो पूरा मामला हुआ, ये मुकेश चंद्राकर यहाँ से ठीक 20 किलोमीटर आगे एक सड़क निर्माण चल रहा था गवर्नमेंट का, और ये जो यार्ड देख रहे हैं ये उसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का था। उस सड़क निर्माण में इन्होंने कई भ्रष्टाचार के मामले जो उन्होंने उजागर किया था, उसको लेकर के कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनकी अनबन हुई, और एक रणनीति के तहत कॉन्ट्रैक्टर ने उनको अपने यार्ड में बुलाया और यार्ड में उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद शव को काफ़ी शातिराना अंदाज में उन्होंने सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने पतासाजी की तो आखिरी लोकेशन भी उसी यार्ड का आया, और जिस सेप्टिक टैंक में उन्होंने दफन किया था वो बिल्कुल नया सा लग रहा था, 2 दिन पहले ही उसकी ढलाई की गई थी। तो इन सारी चीज़ों को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और आरोपियों को क्लियर किया कि इन्होंने ही इसकी हत्या की है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन जो है जो उनकी सारी संपत्तियां हैं उनको कुर्क कर रहा है। ऐसे ही 4 अवैध यार्ड जो हैं इस ज़िले में उनके द्वारा बनाई गई थी, और जिस पे प्रशासन काम कर रहा है। तो ये बस्तर का पत्रकार है जो हमेशा हाशिए पे काम करता है, तलवार की नोक पे चलता है। कभी माओवादियों के तरफ माओवादियों का ये शिकार हो जाते हैं, कभी पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं, कई आरोप लगते हैं। तो बस्तर में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी ऐसी जोखिम भरे इलाकों पर काम करता हूँ, तो मेरा यही कहना है कि पत्रकार सुरक्षा कानून पर फिलहाल काम किया जाए। एक बात बोल दिया सर, आप भी पत्रकार है, ये पूरा आप भी पत्रकार है, ये पूरा जो भी रिपोर्टिंग है रिस्क से ये पूरा बस्तर एरिया है, ये पूरा उधर माओवादी, इधर का ठेकेदार, ये बीच में पत्रकार के लिए कुछ यहाँ का सरकार कुछ करना चाह रहे क्या? नहीं तो ये मुकेश का मर्डर का बाद कुछ एक पक्का बात कुछ बोले क्या? देखिए, काफ़ी लंबे समय से, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पत्रकारों पे हमला हुआ है और पत्रकार इसी तरीके से मारे गए हैं, चाहे वो नक्सलियों से के जो गलत आरोप लगते हैं, पुलिस की मुखबिरी और ऐसे उनके उससे मारे गए हैं, या तो फिर इसी तरह ठेकेदारों के साथ में अनबन की वजह से मारे गए। बीजापुर ज़िले की बात करूँ तो इससे पहले भी साई रेड्डी की हत्या हुई थी, और आज जो है मुकेश की हत्या हो गई है ठेकेदार के द्वारा। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के ऊपर कई हमले हुए हैं,
सरकार को यहाँ के पत्रकारों ने कई बार अवगत कराया है, कई बार उनके जहन में डाला है कि यहाँ का पत्रकार जो है वो सुरक्षित नहीं है। और अभी बीती जो सरकार गई कांग्रेस की, उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कही। सारा मैनिफेस्टो तैयार है, सारी फाइलिंग तैयार है। सरकार बदलने के बाद बीती सरकार ने भी वादा किया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा आज मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार को भुगतना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर पुलिस का गिरफ्तार में है क्या, नहीं तो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे पुलिस? देखिए, सुरेश चंद्राकर का भाई फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में आया है। और आपको बता दूं कि जो उसका जो मेन आरोपी है वो उसकी तलाश पुलिस कर रही है। उसके हिस्ट्री पे तलाश कर रही है कि पहले पुलिस में वो एसपीओ था, पहले वो अंदरूनी इलाकों से नक्सलियों के द्वारा भगाया हुआ व्यक्ति था, काफ़ी छोटा व्यक्ति था, और अचानक से उसने ऐसा क्या पा लिया जो इतने अरबों और करोड़ों की संपत्ति हुई है। साल भर पहले इसने शादी की, हेलीकॉप्टर से बारात में लेकर ये आया तो चर्चे में आया। इसके यहाँ कई छापे पड़े, इसके कनेक्शंस पॉलिटिकल्स कितने हैं, कहाँ है, क्या है। तो ये तमाम जो है पर्चे जो है अब धीरे धीरे खुलेंगे और ये भी पता करेंगे कि इतने बड़े बड़े जो टेंडर्स हैं इसको कहाँ से मिलते हैं। तो ये जांच का विषय है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक छोटी सी नोक झोंक में किसी की हत्या कर देना, वो भी पत्रकार का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये भी गलत है। तो इस पे कार्रवाई की मांग हम पत्रकार कर रहे हैं। ఇది పరిస్థితి. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో జర్నలిస్టులు కత్తి మీద సాము లాంటి ఉద్యోగం ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో సుక్మా కావచ్చు, కాంకేర్ కావచ్చు, ఇటు నారాయణపూర్ జిల్లా కావచ్చు, ఇదంతా కూడా ఇబ్బందులతో కూడుకున్న జర్నలిజం చేస్తున్నాం. మాకు ఒక పక్కాగా ఏ ప్రభుత్వం ఒక అష్యూరెన్స్ ఇవ్వలేదు. గత ప్రభుత్వం కూడా మీకోసం ఒక ప్రత్యేక చట్టం తీసుకొస్తామని చెప్పారు, చేయలేదు. అయితే ఇప్పుడు కూడా ఒక నిండు జర్నలిస్ట్ ప్రాణం పోయింది. ముఖేష్ చంద్రాకర్ ప్రాణం పోయిన తర్వాత ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఇదే ముందు స్పందించుంటే ఈ విధంగా జరగకపోతుండే. ఇప్పటికైనా ఆ కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ ఏ విధంగా వస్తుంది, అసలు కాంట్రాక్టు ఎట్లా వస్తున్నది, ఆయనకు పెళ్ళి అయితేనే నేరుగా హెలికాప్టర్ ద్వారా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన కాంట్రాక్టరు ఏ విధంగా ఈ కాంట్రాక్ట్లు వస్తున్నాయి, అసలు ఎవరెవరి మధ్య సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇంతకుముందే పలుసార్లు మావోయిస్టు పార్టీ కూడా ఎన్నో లేఖలు విడుదల చేసింది. ఎవరైతే ముఖేష్ ఇటు సురేష్ చంద్రాకర్ ఉన్నాడో, సురేష్ చంద్రాకర్కు సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ అంశంలో ఎన్నోసార్లు ఆ పార్టీ కూడా ఖండించిన పరిస్థితి, హెచ్చరించిన పరిస్థితి అన్నీ జరిగినా కూడా ఎలా కాంట్రాక్ట్లు వస్తున్నాయి, వేల కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, అవినీతికి పాల్పడ్డారని నేరుగా జర్నలిస్టులు ప్రశ్నిస్తే చంపేస్తారా అంటూ ఇటు జర్నలిస్టులు కూడా ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. మొత్తానికి ప్రభుత్వం స్పందించింది. ప్రభుత్వం స్పందించి ఎక్కడెక్కడ సురేష్ చంద్రాకర్కు సంబంధించిన ఆస్తులు ఉన్నాయో దర్యాప్తు జరుగుతుంది, జప్తి కూడా జరుగుతుందని చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. जो बीजापुर जिला के लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होते इस समय उस दौरान हमेशा एक चेहरा और एक नाम श्री मुकेश चंद्राकर कराते हैं। कभी भी पुलिस संबंधित कोई भी विषय है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उस दौरान उन्होंने काफ़ी एक एक्टिव रोल में, एक सकारात्मक भूमिका में हमेशा हम लोग के बीच में उपस्थित रहते थे। और आज दुर्भाग्य है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी लेकर कार्यक्रम हुआ, उसी के संबंध में हमको करना पड़ रहा। आप सबके माध्यम से मैं जो उनके परिजन को और उनके साथियों, उसमें ना सिर्फ बीजापुर में पूरा प्रदेश के और प्रदेश के बाहर भी उनका काफ़ी एक पहचान है, उनके काफ़ी एक फॉलोइंग है। उन सबको जो हम लोग की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं और ये आश्वासन भी देते हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इस बात के साथ साथ मैं पुनः उनके परिजन को प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, उनके सभी साथियों, सभी उनकी चाहने वालों को सबके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उनकी आत्मा शांति प्रदाय करे, ईश्वर उनके परिजन को शक्ति प्रदाय करे। इसके साथ साथ जो पूरा घटना जिला बीजापुर के युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर दिनांक 1 जनवरी से अपना घर के जो स्थान से कहीं गए थे, उसके बाद उनका कोई आता पता नहीं होने का उनके परिजन की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके पूरा पैटर्न के जांच पड़ताल किए थे। इस दौरान दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर के
चट्टान पर स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की बाड़ा में सेप्टिक टैंक के अंदर उनके बॉडी होने का शंका पर उसका रिकवर की गई थी, बॉडी रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर करने के पश्चात उसका मार्ग पंचनामा एवं पोस्टमार्टम वाला कार्रवाई भी की गई थी और प्रकरण का अपराध पंजीबद्ध करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर के 11 सदस्य एक SIT गठित की गई। अभी प्रकरण का विवेचना की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी हैं। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक जो प्राथमिक विवेचना के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रहे थे, दिनांक 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टान पर स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे, उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार किए गए थे और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताज़ा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। अब तक विवेचना में जो भी पुलिस के पास फॉरेंसिक एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंस और जितना भी साइंटिफिक एविडेंस प्राप्त हो, उसी आधार पर जो प्रकरण में शामिल आरोपी रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके और उनकी जो सहयोगी दिनेश चंद्राकर, इन तीनों को गिरफ्तार की गई थे। एक अन्य आरोपी जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, क्योंकि उस घटनाक्रम में उसी के परिसर में पूरा घटना हुआ और उसकी वाहन भी इस्तेमाल हुआ और अन्य जितना भी परिस्थिति के आधार पर उनके खिलाफ भी अभी पुलिस आरोपी मानकर उनका भी तलाश की जा रही थी। जैसा उनके पतासाजी उनके गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम गठित करके अभी विवेचना की जा रही थी और जल्द से जल्द उनको भी हम पुलिस हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकरण में बहुत त्वरित तरीके से हम विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में चालान पेश करके जो मृतक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के जो साथ घटना होती है उसके लिए इनके परिजन को न्याय दिलाने के लिए हर कदम हमने प्रयास करके उसका एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से उसका प्रकरण को लॉजिकल एंड तक ले आएगा। जांच पड़ताल करके हमने SIT को ये भी एक लक्ष्य रखा है, इस प्रकरण को एक हाई प्रायोरिटी केस को मानते हुए इसका विवेचना जितना जल्दी हो सकता, मतलब अगले 3-4 सप्ताह में कंप्लीट करके न्यायालय के समक्ष चालान पेश करें और सभी आरोपियों का जिसमें इन्वॉल्व है उनका जैसे उस कानून के प्रावधान के तहत उच्चतम जो सजा मिल सकता, जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता, उसके लिए त्वरित कार्रवाई भी करके हम इस प्रकरण को जो आरोपियों का जो सजा दिलाने के लिए जो भी कसर नहीं छोड़ेगा, सभी प्रकार का जो कार्रवाई को पूर्ण करके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल जो एविडेंस कलेक्शन से लेकर फॉरेंसिक टीम, हमारा फॉरेंसिक टीम भी लगातार इसमें काम कर रहा है। सभी साक्ष्यों को बेस्ड एविडेंस बेस्ड उसकी इन्वेस्टिगेशन को एक प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट करके, इसलिए जो विवेचना के सहयोग के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर साहब के नेतृत्व में जो DSP और साइबर एक्सपर्ट्स और सभी लोग का इन्वॉल्व करके एक टीम गठित की गई थी। और जैसा आप सबके माध्यम से मैं पुनः सभी जो मुकेश चंद्राकर जी का परिजन और उनके साथियों, उनके जितना भी उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनकी जितना भी मतलब चाहने वाले लोग, सबका आश्वस्त करना चाहते हैं इस इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी हाई लेवल का जो प्रोफेशनल और साइंटिफिक लेवल का इन्वेस्टिगेशन होगा। वैसे भी सभी प्रकरण को करना हमारा मैंडेट है, लेकिन ये प्रकरण है मतलब जैसा जितना क्षति मतलब आप सब लोग के हुआ, साथ साथ हमारा भी एक व्यक्तिगत रूप से क्षति थी, क्योंकि पूर्व में जितना भी संकट की स्थिति थे, जैसा किसी प्रकार का कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में इनका सहयोग और बाकी आप सबका सहयोग हमेशा रहा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम सब के लिए और प्रोफेशनली भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो श्री मुकेश चंद्राकर के जो इस तरीके से उनका हम सब के बीच छोड़ के जाना काफ़ी एक अपूर्ण जो क्षति है, इसके लिए हम लोग अपना तरफ से इसको एक चैलेंज के रूप में, एक प्रोफेशनल चैलेंज के रूप में लेकर इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा और उसका न्यायालय में भी प्रोसिक्यूशन के दौरान भी सभी प्रकार का जो विषय पर बिंदु को ध्यान में रखकर इसका प्रोसिक्यूशन में भी एकदम एक उच्चतम जो मापदंड के SOP का पालन करके हम आरोपियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी कसर नहीं छोड़ेगा, उसी हिसाब से हमारा कार्रवाई रहेगा। उधर डिनर वगैरह का जो दौरान जैसा रितेश चंद्राकर द्वारा ये बहस की जा रही थी, आगे बढ़ते बढ़ते जो महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर द्वारा उस परिसर में जो लोहा का राड थे, उसी राड की
लेकर मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार की गए थे और उसके बाद उनके छाती और पेट और पीठ में भी जो लोहा के रॉड से वार की गए थे। जैसा जिस प्रकार का चोट उससे अनुमान लगा सकता है लगभग 15-20 मिनट में उसी स्पॉट में उनका मृत्यु हो गई होगा। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को उसी परिसर में जो टैंक थे, सेप्टिक टैंक थे, उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गए थे। उसके पश्चात रितेश चंद्राकर द्वारा जो अपने बड़े भाई दिनेश चंद्राकर जो जैदलपुर में सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके पूरा परिजन जैदलपुर में उपस्थित थे, उनमें से दिनेश चंद्राकर को उन्होंने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घटना के बारे में सूचना दिया थे। उसके पश्चात दिनेश चंद्राकर ने जैदलपुर से रवाना होकर टुवर्ड्स बीजापुर आ रहे थे और साथ साथ ये रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने भी इधर से बीजापुर से रवाना होकर टुवर्ड्स जैदलपुर जा रहे थे। ये दोनों पार्टी जो है एक साथ दिनेश चंद्राकर थे और दूसरा में रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके थे। इन लोगों की मुलाकात जो नेलसनार के पास बोधली के एरिया में हुआ। उसके पश्चात ये सब मिलकर वापस इधर आए थे जय बीजापुर आने के बाद अगले दिन सुबेरे यानी 2 तारीख के सुबेरे रितेश चंद्राकर द्वारा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जो गाड़ी को लेकर इधर से जैदलपुर कोंडागांव होकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा। रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तब तक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके बेचना शुरू किया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ किए गए थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबका लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी दिल्ली रवाना करती, इस दौरान कल रात को रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा दिल्ली से वापस रायपुर आने का सूचना मिला था, एयरपोर्ट में उनका जो हमारा टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और उनकी जो बड़े भाई जो दिनेश चंद्राकर और जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके, इन तीनों का भी पुलिस ने गिरफ्तार करके भी पूछताछ की जा रही थी और घटना में उपयोग की गई थे जो आयरन रॉड और जो मोबाइल फ़ोन अन्य जितना भी साक्षी है उसका कलेक्शन करने का भी उसका स्पॉट इंस्पेक्शन ये सब कार्रवाई भी जारी है। और इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें अग्रिम विवेचना के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर IPS ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में 11 सदस्य का जो SIT टीम गठित की गई थे और प्रकरण के जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो भूमिका को लेकर जैसा क्योंकि परिसर भी उन्हीं का है जहाँ पर घटना हुआ है और जो वाहन भी जो उन्हीं के वाहन को इस्तेमाल करके जो रितेश चंद्राकर द्वारा इधर से रायपुर से दिल्ली के लिए गए थे, एयरपोर्ट तक रायपुर एयरपोर्ट तक गए थे। ये सब परिस्थिति और जो पूरा घटनाक्रम उनका भूमिका का इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए उन्हें भी पुलिस द्वारा एक प्रमुख आरोपी को मानते हुए उनका भी पतासाजी अभी की जा रही है। उसके लिए 4 अलग अलग टीम हमारा उनकी संभवित ठिकाने का आसपास जहाँ पर मिलने की उम्मीद है उधर टीम्स रवाना की थे। हमारा कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें भी हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने का। अब तक घटनाक्रम में जो पुलिस की विवेचना में जो प्राथमिक स्तर पर अभी विवेचना, क्योंकि सिर्फ अभी 2 आरोपी है जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके वो उपस्थित रहा, उन्होंने वार किया और जैसा इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गए थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटनाओं का अंजाम दी गई थी उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर उसका भूमिका उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अपराध में इन लोगों का सहयोग किया ये काम की गए थे। तत्पश्चात आज दिनांक 4 तारीख को पोस्टमार्टम के उपरांत आज उनकी अंतिम कार्यक्रम होता है, उसमें हम आप सब लोग शामिल रहा। और उसकी जो पूरा घटनाक्रम के बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा दिनांक 1 तारीख को रात लगभग 8 बजे, जैसा भी समय अभी तक प्राथमिक विवेचना के आधार पर मैं बता रहे थे, जैसा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा स्पष्ट समय ये पूरा उल्लेख हो जाएगा। लगभग अभी अंदाजा 8 बजे करीबन जैसे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो छोटे भाई
रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर के बीच में मोबाइल से बातचीत हुआ। उसके पश्चात लगभग 8:30 बजे के बाद दोनों रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर जो बीजापुर चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो बाड़ा में, उन दोनों का मुलाकात हुई थी। और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। आज मेरे साथ डीजी दंतेवाड़ा श्री कमलोचन कश्यप, कलेक्टर बीजापुर श्री संबित मिश्रा साहब, जो बीजापुर एसपी साहब जितेंद्र यादव साहब मेरे साथ उपस्थित है। और आप सब लोग का विदित है, जैसा दिनांक 2 जनवरी को हम सब लोग के बीच में ये जानकारी आए थे। श्री मुकेश चंद्राकर 1 तारीख रात से जो अपना घर से निकले हुए थे, उसके बाद बाथरूम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके जो भाई साहब योगेश चंद्राकर का रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ की गई थे। जैसे उसके लिए अलग अलग टीम गठित करके जितना भी संभावित जो लोकेशन है उसी में हमारा टीम्स गए थे और उनका पता सर्च करने के लिए अलग अलग टीम के द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी अनुसार फिर कल दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में जो टैंकी में उनकी बॉडी होने का संदेह पर उसका खुदाई की गई थी। ముఖేష్ చంద్రాకర్ జర్నలిస్ట్కి సంబంధించిన అంశంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా పలువురు మేధావులు ఇటు వచ్చిన పరిస్థితి, తనకు నివాళులు అర్పించిన పరిస్థితి, దీంతోపాటు అంతిమ యాత్రలో పాల్గొన్న పరిస్థితి కనబడింది. దీని తర్వాత ఐజీ సుందర్ రాజ్ కూడా ప్రధానంగా కొన్ని అంశాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఎందుకు ముఖేష్ చంద్రాకర్ను హత్య చేయవలసి వచ్చి హత్య జరిగింది, హత్యకు ప్రధాన కారణాలు ఏంటి అనే కోణంలో కొంత మీడియాతో ఇంతకుముందే మాట్లాడిన పరిస్థితి. అయితే మనతో పాటు ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ ఉన్నారు, అదేవిధంగా హక్కుల సంఘాల కోసం మాట్లాడే పరిధి పంచే మేడం ఉన్నారు. సరే, మేడంతో కూడా మాట్లాడిద్దాం. అసలు ఏంటి పరిస్థితి, ఓవరాల్ ఎపిసోడ్లో మేడంకి తెలిసింది ఏంటి ఒకసారి తెలుసుకుందాం. మేడం क्या है मैडम, ये जो भी मामला है क्या हुआ है, कैसा देखना क्या है, ये जो भी पूरा सारांश क्या है? तो इसमें सारांश यही है कि यहाँ पे एक बहुत बड़े ठेकेदार हैं जिनका नाम सुरेश चंद्राकर है। तो ये करोड़ों में इनका बिज़नेस है और इनका बिज़नेस भी लास्ट 10-15 इयर्स का ही है। और इनका पूरे बीजापुर में बहुत इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत तरह का जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें इनका एक तरह का मोनोपोली है। हाँ, बहुत, तो इसीलिए इनको बहुत तरह तरह के मतलब रोड्स कंस्ट्रक्शन में के लिए इनको टेंडर्स मिलते रहे हैं और इनको सरकार फेवर करती रही है। तो इसीलिए इसके पीछे भी एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी जैसे आज ही एक प्रॉपर्टी इनका सरकार ने ध्वस्त किया है दिखाने के लिए एक तरह से कि हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं, मगर ये जो प्रॉपर्टी है ये 5 साल के पहले से उनके पास में थी और ये फॉरेस्ट लैंड है। हाँ, 5 एकर्स, मोर देन 5 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। और ये यहाँ पे जो CRPF कैंप है गंगलूर रोड पर, उसी के सामने में ही ये पूरा इलीगल प्रॉपर्टी पर उनका कब्जा था, जिस पे उनके बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स थी, करोड़ों की मतलब मशीन्स थी, JCB थे और सीमेंट मिक्सचर्स थे, ऐसे ऐसे करके बहुत उनका प्रॉपर्टी वहाँ पे है। ऐसी ही प्रॉपर्टी उनका बहुत जगह में है। हाँ, तो इसमें इसीलिए इस पूरी चीज़ को केवल एक ठेकेदार उसको नहीं समझना चाहिए, इसके पीछे बहुत लोगों का, बड़े बड़े लोगों का और शासन प्रशासन का भी, बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इस पूरी चीज़ में हाथ है। एक चीज़ अब क्या है कि ये जो सुरेश चंद्राकर थे उसके ये पूरे रोड कंस्ट्रक्शन में जो हुआ भ्रष्टाचार, उसके विरोध में ये मुकेश चंद्राकर उसका पूरा इन्वेस्टिगेट करके वो पूरा इसको एक तरह से विसल ब्लोअर थे और ये करोड़ों का करप्शन यहाँ पे हुआ है। तो उन्होंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने इसके बारे में लिखा और साथ में वो NDTV के साथ भी काम करते थे, तो NDTV में भी उन्होंने ये पूरा रिपोर्ट डाल दिया, जिसके कारण उन पर बहुत प्रेशर था। ये सुरेश चंद्राकर की फैमिली
के द्वारा और खुद सुरेश चंद्राकर के द्वारा, और ये मुकेश चंद्राकर भी और सुरेश चंद्राकर कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग सब एक तरह से एक ही परिवार के भी हैं। इनके जो दादा लोग थे, मतलब ये लोग एक ही दादा के हैं। इनके खुद के फादर अलग अलग थे, मगर एक ही फैमिली से ये लोग आते हैं। तो ये फैमिली के अंदर का भी एक मतलब दिखता है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, मगर इसमें मेन पॉइंट यही है जिसके लिए आज यहाँ पे मतलब कई पूरा बीजापुर के जनता, पूरे बस्तर संभाग से जर्नलिस्ट आए थे, दूर दूर से आए थे, क्योंकि मुकेश पिछले 2012 से ही उसने शुरू किया एक जर्नलिस्ट का काम, मगर वो बहुत अच्छा जर्नलिस्ट था। उसका एक यूट्यूब चैनल था जो बस्तर जंक्शन के नाम से चलता है, जिसमें वो बहुत एक्टिव था, और उसके बहुत उसमें यूट्यूब में बहुत उसने बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, जिसमें उसने अलग अलग इश्यूज़ पर काम किया है। यहाँ पे स्टेट से के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, जैसे फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उस पर भी उसने लिखा है। माओइस्ट के द्वारा भी जो यहाँ पे हिंसा हुई है या हो रही है, उस पर भी उसने लिखा है। यहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति है, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, इस तरह का वो बहुत ही एक अच्छा रिपोर्टर थे, और सब कुछ अपनी पूरी बात बहुत ही बेबाकी से रखते थे। सो ही वॉज अ बहुत पॉपुलर यंग जर्नलिस्ट। हाँ, सो अभी जो हुआ है कि 1 तारीख को जनवरी को उसी के ये सुरेश चंद्राकर के छोटे भाई रितेश, जो मुकेश को जानते थे क्योंकि पारिवारिक रिश्ता था, तो उनको बुला के अपने घर लेकर गए कि अभी 1 जनवरी है, तुम हमेशा हमारे बारे में लिखते हो, फिर भी आज हम लोग 1 जनवरी है, मिलके खाना खाएंगे, ऐसा करके उसको अपने घर लेकर गया। तो डिनर के समय केवल रितेश था, और रितेश के साथ में उन्हीं के एक रामटेके करके, महेंद्र रामटेके, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो उनके सुपरवाइज़र हैं, वो भी वहाँ पे डिनर में थे। और डिनर करते करते ही उन्होंने उसके साथ में आर्ग्यूमेंट किया है, और ऐसा सुनने में आया है कि उसी समय, क्योंकि रितेश ने बाद में कन्फेशन किया है, हाँ, उसको अभी वो पुलिस कस्टडी में है, रितेश और रामटेके दोनों का अरेस्टिंग हो चुका है। तो उसने जो अपने बयान में बोला है वो यही बोला है कि फिर खाना खाते खाते हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, और हमारे पास में वहीं पे एक रॉड था, उस रॉड से हमने उसको उसके सिर पे मारा है और उसके चेस्ट पे मारा है, और इस तरह से। तो जो भी उसके बॉडी में वुंड्स थे, उससे वेरी क्लियरली कि वो कोई एक आदमी का काम नहीं था, उसमें 2-3 लोग शामिल हैं। और फिर उसी परिसर में वहाँ पे वो वर्कर्स के लिए एक जगह बनाया था उन्होंने, जहाँ पे वर्कर्स के लिए बहुत रूम्स था। तो वहीं पे जो सेप्टिक टैंक था, तो उन्होंने उसी सेप्टिक टैंक में को ही खोल कर उसका लाश वहीं पे उन्होंने डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे भाइयों को भी इन्फॉर्म किया। उसके बाद दूसरे भाई आए, वो उधर नहीं थे उस समय, वो आए, और सुनने में आता है कि उनका हाथ था उसको पूरा प्लास्टरिंग करवाने में। और मुकेश का जो भाई था वो 1 तारीख से उसको ढूंढ रहा था, तो 2 को उसने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखाया था पुलिस स्टेशन में। और फिर वो बार बार यही बोल रहा था कि लास्ट लोकेशन उसके फ़ोन का वॉज नियर द सेप्टिक टैंक, वहीं पे था। तो वो पुलिस के बहुत पीछे पड़ा था कि यहाँ पे इसको, यहीं पे वो हो सकता है, उसको कुछ किया गया है। और उसका ये कहना है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी, और यहाँ के जो पत्रकार हैं उनका भी कहना है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी। बार बार उनको पुलिस को बोलना पड़ा कि आप लोग एक्शन लीजिए, इसमें यहीं पे उसका बॉडी या कुछ भी हो सकता है। और बहुत बोलने के बाद फिर उन्होंने वो सेप्टिक टैंक को खुलवाया है, और उस सेप्टिक टैंक के अंदर ही उसका लाश मिला है। तो ये पूरा कहानी है। मैडम, अब इससे पहले डीआईजी भी आईजी भी बात किया सुंदर राज, वो पूरा देखने के बाद आप एक वकील हो, उसका नाते आपको देखे तो पूरा मालूम हो जाता, जो भी ऑफिसर बात कर रहा है, ये जो भी क्राइम हुआ है
इसका बारे में आपको क्या लगा? बोले तो अपन कैसा देखना, ये जो भी एक जर्नलिस्ट का हुआ है देश में, ये 9th है, ये जो भी मुकेश से 9th मर्डर है, ये 25 में ये पहला मर्डर है देश में। अपन कैसा देख सकते हैं? आप एक इंटेलेक्चुअल है, आप क्या बोल सकते हैं RTV? इसमें ऐसा है कि जो भी डेवलपमेंट का जो काम होता है तो गवर्नमेंट हमेशा ये दिखाती है कि हम ये काम लोगों के लिए कर रहे हैं, मगर उसके पीछे में बहुत नेक्सस होता है। उसमें जो भी ये ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, किसको टेंडर मिलता है किसको नहीं मिलता है, उसके पीछे में भी पॉलिटिक्स होता है बहुत, मतलब इसमें बिग मनी इन्वॉल्व होता है। हाँ, सो जैसे सुनने में आता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये यहाँ के ही जो MLA हैं उसका पूरा इलेक्शन का फंडिंग वही करता था। हाँ, तो इस तरह का वो एक केवल एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से बिग मनी इज़ इन्वॉल्व इन ऑल दिस। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, ये कोई एक दो लोगों की लड़ाई से उत्पन्न हुआ मर्डर नहीं है, ये एक ऐसा मर्डर है जो एक तरह से यहाँ की पत्रकारिता और ख़ास करके यहाँ का जो पूरा एक बस्तर में जो पूरा हो रहा है, हाँ उसका एक नया चैप्टर है। क्योंकि अभी तक हमेशा पुलिस के द्वारा एनकाउंटर्स होते हैं यहाँ पर, या माओइस्ट कभी कभी किसी को मारते हैं, वो माओइस्ट के द्वारा हिंसा होती है, मगर ये जो एक थर्ड टाइप ऑफ हिंसा वायलेंस बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मतलब दीज आर बिग बिजनेसमैन, सो उनके द्वारा एक तरह का, एंड इन दिस केस इट इज़ नॉट इवन अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये तो डायरेक्टली है क्योंकि उसका रिलेटिव है वो, है ना, वो अपने घर में आपको बुलाता है और आपको सीधे मारता है। सो दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट ये मर्डर हुआ है रात में। ऐसा IG बोल रहे थे कि 8:30 से 10:30 के बीच में बोल रहे हैं मर्डर हुआ है, फर्स्ट को ही। तो उसको वो लोग बुलाए हैं और उसके घर गए हैं और थोड़ा बातचीत के बाद ही ये हो गया है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मर्डर। लाइक बस्तर में जंगल का कोई कमी नहीं है ना, वो उसको एक्सीडेंट दिखा सकते थे, जंगल ले जाके कैसे भी कुछ करके भी उसको मारा जा सकता था, मगर इस तरह का कि आपको घर में बुलाते हैं और सीधे आपको मारते हैं, है ना, एंड आपका लाश को वो लोग इस तरह से डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करते हैं, छुपाने का कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उनको लगा था कि दे विल गेट अवे विद इट, ये बात है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस ये जो हुआ है, क्योंकि अभी बस्तर में तो क्या है कि आप जानते होंगे यहाँ पे माइनिंग कंपनीज़ अभी बहुत आ रहा है यहाँ पे बस्तर में, यहाँ पे जल जंगल ज़मीन की बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ पे हो रही है, चल रही है। तो अभी क्या है कि और सरकार ये बार बार ये आक्षेप लगाती है कि नक्सली माओवादी यहाँ पे डेवलपमेंट होने नहीं देते हैं, है ना, तो इसीलिए इस केस में जैसे आज जो जगह जिसका ध्वस्त हुआ, जो उसका एक प्रॉपर्टी ध्वस्त हुआ, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि दैट प्रॉपर्टी वो CRPF कैंप के ठीक सामने में प्रॉपर्टी है, वो इलीगल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड पर है। फॉर 5 years, मोर देन 5 years वो वहाँ पे है। उसने कितने झाड़ वहाँ पे पेड़ों को काट के वो बनाया है जगह। हाउ कम द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड दिस? दिस इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क कि कैसे आप, और केवल रोड बिल्डिंग के नाम पर, तो इसका मतलब आपका पूरा रोड बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आपका यहाँ पे जो पूरा रोड बिल्डिंग के नाम पर बहुत नेटवर्क है, यहाँ पे पूरे बस्तर में अभी रोड बिल्डिंग चल रहा है, तो उसको पूरा को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये सब के पीछे कौन है, कि ये सब के पीछे कितना पैसा है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ। हाँ, सो दिस इज़ डेंजरस trend in some ways. It is now beginning, so it is something which we have to, it's a warning of a kind. मैडम, इसके बारे में आप कोर्ट में कुछ अपील डाल रहे क्या? नहीं तो आपका नाम और डिटेल्स बता के ये क्या करना चाह रहे नेक्स्ट जो भी कोर्ट में आप? नहीं, इसमें तो क्या है कि इन एनी केस ये कोर्ट में मैटर जाएगा, क्योंकि इसमें तो ये FIR हो चुका है एंड ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो IG का कहना था कि एक SIT 11 मेंबर SIT टीम उन्होंने ये किया है, तो
उसके बाद तो ही सेइंग कि एट द वेरी अर्लीस्ट हम लोग चार्जशीट प्रिपेयर करेंगे. चार्जशीट वो सब प्रिपेयर करने के बाद इट विल बिकम ट्रायल विच विल हैपन इन द कोर्ट. सो you know so in the regular process it will happen. So let's see, you know. मैडम आपका नाम और आपका? मेरा नाम बेला भाटिया है और मैं एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ और साथ में मैं एक राइटर भी हूँ. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది పరిస్థితి. బేలా భాటియా అడ్వకేట్ చెప్తున్న లైన్ ప్రకారం ముఖ్యంగా ఇదొక కొత్త ట్రెండ్ను క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో బస్తర్ ప్రాంతంలో రోడ్డు అభివృద్ధి పేరుతో ఒక పెద్ద స్కామ్ జరుగుతుంది. దీనిపై ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి, వాస్తవిక పరిస్థితులపై ఎంక్వైరీ జరగాలి. ఎంక్వైరీ జరిగితే కానీ దీంట్లో ఎవరెవరున్నారో తెలియదని చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. అయితే ఈ ప్రాంతంలో జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం ఒక ఉద్యమం జరుగుతుంది. మైన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అయితే ముఖ్యంగా ఈ కాంట్రాక్టర్ని ఒక లైన్ ప్రకారమే చూసే ప్రయత్నం చేయొద్దు. దీన్ని అంటే కాంట్రాక్టర్ రకరకాలుగా ముఖేష్ను చంపే ప్రయత్నం జరుగుతుండే, యాక్సిడెంట్ ద్వారానో లేదంటే అడవిలో పడేయడమో, ఇదంతా ఏది కాకుండా ఒక పథకం ప్రకారం ఒక కొత్త ట్రెండ్ లైన్ ప్రకారం చంపేసి డ్రైనేజ్ సెప్టిక్ ట్యాంక్లో వేసేయడం జరిగింది. దీన్ని ఒక రచయితగా అదేవిధంగా హ్యూమన్ రైట్స్ అడ్వకేట్గా నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. దీనిపై చాలా సీరియస్గా నేను కూడా చూస్తున్నాను. అసలు మార్నింగ్ నుండి ఏం జరుగుతుంది బీజాపూర్లో ఏ విధంగా అసలు ఈ హత్యకు సంబంధించిన అంశంలో ఎందుకు సురేష్ చంద్రాకర్ అంశంలో ఎందుకు ఇప్పటిదాకా ప్రభుత్వం ఒక క్లారిటీకి రాలేదు. వందల కోట్ల రూపాయలతో ఏ విధంగా ఈ టెండర్లు వస్తున్నాయి, దీని వెనకాల ఎవరున్నారు, ఇదంతా కూడా ఒక ఎంక్వైరీ జరగాలి. దీంట్లో వాస్తవిక పరిస్థితులు తెలవాలి. తెలిస్తే కానీ విషయం తెలియదు. రొటీన్గా కేసు రిజిస్టర్ అవుతుంది, ఆ ప్రాసెస్ జ్యుడిషియరీలో నడుస్తుంది. ఇదంతా కూడా కామన్, కానీ నిజాలేంటి అనేది తెలిసే ప్రయత్నం జరగాలని చెబుతున్న పరిస్థితి. మరోపక్క ఈడ బీజాపూర్కు అతి కిలోమీటర్ సమీపంలోనే ఆడ బేస్ క్యాంపు, బిఎస్ఎఫ్ బేస్ క్యాంప్ ఉంది. బేస్ క్యాంపు ముందే ఎవరైతే ఇప్పుడున్న క్రైమ్కు పాల్పడ్డ వ్యక్తి కాంట్రాక్టర్ ఉన్నాడో సురేష్ చంద్రాకర్కి సంబంధించిన మిషనరీ కావచ్చు, క్యాంప్స్ కావచ్చు అక్కడే ఉంది. 5 ఎకరాలలో ఫారెస్ట్ భూమిలో ఇల్లీగల్గా ఎంక్రోచ్ అయ్యాడు. ఎందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా స్పందించలేదు అనే కోణంలో కూడా ఎంక్వైరీ చేయవలసి ఉంటుంది. ఇటు ముఖేష్ చంద్రాకర్ ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలపై, వాస్తవిక పరిస్థితులపై ఎప్పటికప్పుడు విషయం ప్రజాహితం చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే ముఖేష్ చంద్రాకర్ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాంతం రోడ్స్ కావచ్చు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో, ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న అఘాయిత్యాల గురించి ఎప్పటికప్పుడు ప్రజాహితం చేసే ప్రమాదం ఉంది. ఒక్కరు చేసింది కాదు, ఇదంతా కూడా కాంట్రాక్టర్ మాఫియా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారని ఇటు భాటియా చెబుతున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. సుమంత, రవినాయక్, RTV, ఆదిలాబాద్.